वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। जो साखी है, जो प्रसंग है, वो है सतगुरां दा मक्के जाना। उथों दे जेड़े काजी मुलाने पीर सन, उन्हां दे नाल सतगुरां दी गोष्ठ होई, विचार हुई। इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला अज बहुत महान पवित्र गुरपुरब है। साडे हाजर नाजर सतगुरु लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी नशीनी गुरपुरब है। अज दे दिन नादेड़ अबचल नगर हजूर साहब की धरती ते साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगमड़े सतगुरु कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ज्योति जोत समाउण तो पहला हुण भी ये दिहाड़ा 19 तरीक नूं आ रहा है। सतगुरां दे ज्योति जोत समाउण दा जो गुरपुरब है। सो सतगुरां ने ज्योति जोत समाउण तो पहला जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज दे समय तो बधी हुई मर्यादा दे अनुकूल अनुसार जिवें उन्होंने भाई लहणे नूं गद्दी नशीन कीता सी, जिवें गुरु अंगद साहब महाराज ने भाई अमरदास जी नूं गद्दी नशीन कीता सी, जिवें गुरु अमरदास महाराज ने भाई जेठे नूं गद्दी नशीन कीता सी,
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਲੈਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਢੰਡਾਊ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਤੋਲਦਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਆਓ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਆਦਮੀ ਪਿਸਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਘੱਲੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਘੱਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੋਖਾ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਸਟਮਰ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਤਲੈਸ਼ੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਢੰਡਾਊ ਕੌਣ ਹੈ?
ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ बरस एक हों फिरियो किने न परचो लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। जेड़े भट्ट श्री अमृतसर साहब आके गुरु अर्जन साहब महाराज नूं मिले सन, उन्होंने इस गल की आके पहला अपनी विथया दसी सी भी महाराज 1 साल हो गया सानू, 1 साल तो असी तुरे फिरदे हाँ, संत लभण तुरे सी, लभा ही नहीं। रहयो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे। जे गुरु अर्जन साहब दे समय संत लभने औखे सी ते पुछो भी अज किवें लभ सकदे ने। अज तो जिन्हों मर्जी पुछ के वेख लो, हर बंदा ही अपने नाम नाल संत लाई फिरदा है। कहण नाल संत नहीं हुंदा, संत बनना पैंदा है। उहदी बहुत वड्डी काल कमाई है। रब दे मुतलैशी, रब दे ढंडाऊ तुहानूं बड़े थोड़े लोग मिलणगे, बहुत थोड़े लोग। कदे कदे तुहाडी जिंदगी दे विच जां तुहाडे आले दुआले कुछ ऐसियां घटनावां घटदियां ने। 2 घटनावां दा जिक्र मैं बहुत वारी कीता है। एक निहंग सिंह दा, शकूर बस्ती उतरिया ते तुरदा तुरदा वो शालीमार बाग पहुंच गया ते गुरुद्वारे जाके उन्होंने पुछदा भी प्रधान का घर कित्थे है। उन्हें सोचा भी इनू काम होना है कोई, उन्होंने दसता भी वो है जी, वो प्रधान के घर पहुंच गया। आवाज़ा मारन लग गया, बाहर नौकर आया, कहता बई तेरा प्रधान कित्थे है। वो कहता जी वो तो सुते पे ने। कहता उठा, होवे गुरुद्वारे का प्रधान तो सुता पिया। उठा लिया। ये मैनू उस बंदे ने खुद गल सुनाई है। कहता गुस्सा तो मैनू बड़ा चढ़िया भी मैं किहदे बाप का करजा देना है बई, किरती आदमी आ, राती लेट आया तो सुभावक है लेट ही उठांगा। कहता मैं गया तो बड़े गुस्से च बाहर, जो बूहा खोल के वेख्या तो निहंग सिंह। कहता गुस्सा मेरा ठंडा हो गया। मैं पूछया भी दसो बाबा जी। कहता दसना की है, प्रशादा छकना है। कहता ना मैं कहने जोगा भी नहीं छकाउंदे, ना मैं कहने जोगा भी छकाउने आ। कहता मैं कहा जी आ जाओ। उन्होंने गल ही इदां दी की थी, प्रशादा छकाया। छकाउंदियां छकाउंदियां कहंदे मैं पूछया भी फौजां चलियां किधर नूं ने। कहता हजूर साहब चलियां ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बुलाया। देखो अवस्था वेखो तुसी। कहता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बुलाया। ये हकीकत जे याद रखना, आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावे। अज कई मेरे वर्गे तो फ्लाइट ही पुछते रहते हैं। साडे बजुर्ग फ्लाइट पुछते होंदे सी। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ट्रक ਲੈਂਦਾ ਸੀ तो ਉਹਦੇ मगर तुर ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਅਮਕਾ ਸਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ट्रक ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲ गुरु कलगीधर पिता उड़ीकदे ने, चल दर्शन करके आईए। देखो इन्हों तुसी अगर किसी साइंस ज्ञान विज्ञान दे विच पा के लभण लगोगे, वो जिवें लैबोरेटरी कैमीकल पाईदे ने ते चो कुछ नहीं निकलना। ये शरधा आस्था, ये गुरु दे प्यार दियां ये बातां ने सारियां। कहते प्रशादा उन्हें छक लिया तो मैं उन्होंने पता नहीं 100 के 200 रुपया दिता, शायद मेरे ख्याल 100 ही मैंने दसिया उन्होंने, क्योंकि गल भी 20 साल तो ज़्यादा पुरानी है।
वो मैनू कहता भी ਇਹਦਾ की करना है, तो कहता मैं क्या बाबा जी राह च फिर भुख लगेगी तो छक लियो जे। वो कहता भी नहीं मैं पैसे नहीं लेने, भुख लगी तो अज तुसी शिकायत है, मुड़ के लगेगी तो कोई होर शिका देगा। कहता मैं जोर ला के मर गया। कहता नहीं पैसे नहीं लेने। तुसी मन्नोगे अज भी धरती ते इदां दे लोग हैगे ने। पर एक वो भी लोग ने, कहतिया कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। कुछ लोग रब दे मुतलैशी हुंदे ने, वो सिर्फ रब दे ढंडाऊ हुंदे ने, उन्हां दा कोई रस्ते च वणज वपार नहीं हुंदा। जिन्हां ने रब नूं लभना है उन्हां लई एकमात्र जिहड़ा थां है वो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। जे नहीं तो हुण गुरु दियां बाणी दियां पंक्तियां लिख लैणियां। कबीर नामन को तीरथ घणे, पूजन को बहु देव। नामन को तीरथ कणे, पूजन को बहु देव। कहो कबीर छूटन नहीं, छूटन हर की से। मुक्ति नहीं जे होनी। नहाना है तो तीर्थ बड़े ने, देवियां देवतियां की पूजा करनी है तो देवते बड़े ने, पूजा करनी है तो 33 करोड़ देवते ने। रोज नवे तो नवा देवता पूजो, मिल जाएगा तुहानू। जिवें अज असीं चाहुंदे हां ना भी नवीं तो नवीं चीज़ होनी चाहिए, नवीं तो नवीं कोई गल होनी चाहिए। 33 करोड़ देवी देवते ने, 33 करोड़ दिन तो बंदे की उम्र भी नहीं है। रोज नवा इष्ट बना के पूजया जा सकता है, रोज नवे तीर्थ की यात्रा की जा सकती है। पर जे मुक्ति लभोगे तो मुक्ति नहीं लभेगी। अगर अज का गुरपुरब मनाउंदे आ, तुसी चाहुंदे हो कि हकीकतन ये गुरपुरब साडी जिंदगी विच मनाया जाए, तो अज एक प्रण कर लो कि अज तो बाद मेरा गुरु केवल ते केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। अज तो बाद मेरा गुरु जिहड़ा है वो केवल ते केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज है। अज तो बाद मैं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो बिना किसी को मत्था नहीं टेकांगा। मैं किसी को जाके अपने दुख सुख की अरदास नहीं करांगा। दुख की गल होएगी, सुख की गल होएगी, इसे नाल ही आके करांगा। और इस नुकते ते दास ने बहुत बारी बेनती की, करियो ही ना। मत सोचो भी दुख की गल कीतियां लोग हासा करनगे, लोग छड्ड के चले जाणगे, क्योंकि गुरबाणी का फैसला है। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरे। ये तो फैसला है बाणी का, कौन झुठला सकता है। इस गुरबाणी के फैसले को कोई नहीं झुठला सकता। पर अगली गल भी सुख की गल सांझी क्यों नहीं करनी। सारी दुनिया सुखा दियां ही गल्लां शेयर कर दी एक दूजे नाल, ते इस तो बाद ये भी सोच लेना तुहाडे किसी सुख की गल तो कोई बंदा सुखी नहीं जे हुंदा। किसी नूं दस के वेख लियो भी मैं जी नवा मकान लिया है। अच्छा मकान ले लिया, ये तेनों पैसे कित्थों बज गए? भी पैसे है कोई गड्डी च गड्डी थोड़ा वजी है, उहदे साह चढ़ा गया बंदा दूसरा। साडी हालत यह है भी असी उहदे ही साह चढ़ा जाने आ, उस तो बाद कई दिन साह चढ़िया रहना, घर जाके भी यही उन्होंने पता नहीं कित्थों पैसे मिल गए, उन्हें पता नहीं घर किवें ले लिया। वो ट्रकों वालिया ने ना मगर लिखिया होंदा, कहता दिंदा है रब सड़दे ने सब, पता नहीं क्यों। देना तो परमेश्वर ने है। ते ईरखा विच पराई तात विच
साड़े विच असी आपां सब कुछ गवाई जाने। आ जिहड़ा महीना चढ़िया है ना, ये महीने का परसों का पाठ इहो ही सी, तन मन मौलिया राम सियों। वो कौन है? ये उही है, मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां। जिहड़े रब कोल बहणगे उन्हां दा ही मन हरिया होना है, उन्हां दा तन हरिया होना है, दूजियां दा कोई नहीं हरिया होना। तुसी कोई चंगी गल किसी नूं सुना के वेख लिओ, अपनी किसी नूं खुशी नहीं होएगी। तो खुशी की निशानी की है? निशानी तो यह है ना कि तुसी कहो कि भाई मैनू रब ने मकान दिता है, तो अगला कढ़ के 500 रुपया कवे भी जा बई मठियाई लैके आ, मठियाई वंडीए, साडे भरा नूं भी रब ने घर दिता है। तुहानूं मिलणगे ऐसे बंदे। दिल्ली कमेटी के प्रधान हुंदे सी ऐसे सेठी साहब। जदों मैं पहली बारी कार लई ना, तो मैं कमेटी तो ही लोन लिया। मैं प्रधान जी नूं कहा, मैं कहा जी स्कूटर है, सारे कपड़े काले हो जाते हैं, तो मत मुड़ लै लो ना, इदा बोलते सी। उन्हें पैसे दिते, मैं कार लै ली। हुण 5-6 दिन लंघ गए, उदों सीसका साहब मेरी सेवा सी, वो आए अचानक, तो मैं मिलिया, तो उन्होंने चेता सी, है बुजुर्ग सी पर मैमरी बड़ी वधिया सी। वत मुड़ भाई साहब गड्डी लै लई? मैं कहा जी लै लई। तो लड्डू कित्थे ने? मैं कहा जी सॉरी, लड्डू हुणे आ जाते ने। उन्हें 500 रुपया कढ़िया, 2-3 डब्बे मंगाए। तुसी क्यों मंगासो? असां दी हैड ग्रंथी, असां वंड सा ना, इनू कहंदे ने खुशी। इत्थे इत्थे ग्रंथी लै लवे स्कूटर, ते अद्धी कमेटी नूं वैसे ताप चढ़ जाता है। वो कहंदे भी इहदा साइकिल दे विच पजामा फस के क्यों नहीं पाटा। अमूमन साडी हालत यही है कि वधिया रागी ग्रंथी वो है जिहदा साइकिल की चेन च पजामा फस के फटिया होवे, वो भाई बहुत वधिया। जिहड़ा स्कूटर ते चढ़ गया, भाई नूं ते जी बाबे नूं ते खंभ लग गए, कहंदे स्कूटर लै लिया नवां इहने हुण। भी तुहाडीआं अरदासां करे तो तुसी गड्डियां लै लो, तो जे रब उहनूं स्कूटर देवे तो उहदे खंभ निकल आए। हुण दसो इहनूं ईरखा नहीं कहंदे तो होर की कहंदे ने? होर ईरखा किहनूं कहंदे ने? होर को रेल गड्डियां दे एक्सीडेंट नूं थोड़ा ईरखा कहंदे ने। ट्रक च ट्रक वजे नूं ईरखा नहीं कहंदे। आत्मा ही वज जाती बंदे दी, मन ही वज जाता है। खाधी पीती उहदी सवेर दी विचारे दी सड़ के सुआह हो जाती भी ये की बनिया, बाबे ने स्कूटर लै लिया। अज तो बाद एक फैसला कर लो कि दुख ते सुख की अरदास इहदे कोल करनी आके। वो जिहड़ा तुसीं शब्द एक सुनते हो ना कि दुख वेले अरदास, सुख वेले शुकराना, ते हर वेले सिमरन। सिमरन भी इहदा करना है। दुख सुख वेले अरदास भी ये कोल करनी है। और जदों आके कहना इहो ही पंक्तियां पढ़नियां ने, तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही, है ही नहीं। ये नाल कहना है, मैं होर थाओ नाही जिस पे करो बेनंती। कोई है ही नहीं जिथे जाके मैं अपनी वेदना कह सका। ये दिल की गल किसी को दस्यो ना। ये बेनती किसी नाल ना करियो। मैं होर थाओ नाही जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जे तुहानू कोई पूछे कि गुरु कलगीधर पिता की सब तो वड्डी बख्शिश की है, तो मैनू पता है आप सारे इको ही गल कवांगे भी जिहड़ा उन्होंने खालसा प्रगट किया है।
जिहड़ी खालसे की साजना की है ना गुरु गोबिंद सिंह ने, ये सब तो वड्डी बख्शिश है। बख्शिश है पर वड्डी नहीं है, इस तो भी वड्डी एक होर है। उस तो वड्डी ये भी जिहड़ा सानू गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाता। जे गुरु गोबिंद सिंह सानू गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ ना ला के जाते तो जिवें प्रधान चुन लग्या ना गुरुद्वारे दा, असी सिक्खी लीरो लीर करते हैं, गुरु चुनन लग्या साडी हालत इदों भी भैड़ी हो जानी सी। पिछे वेख्या एक संप्रदाय दे धारियां दी, उन्हां दा जिहड़ा मौजूदा गुरु सी वो चला गया, मगरों जिहड़े सी वो दो खड़े हो गए। वो एक बारी नहीं कई बारी हो चुका है भी वो एक दूजे दे चेले जिहड़े ने वो गुरु नूं डांगां नाल कुटदे ने। एक चेले दे गुरु दूजे गुरु नूं जाके डांगा फड़ के कुटदे ने। साडी हालत भी यही होनी सी। कोटान कोट शुकर गुरु कलगीधर पिता दा, जिन्हां ने ज्योति जोत समाउण तो पहला सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ ला दिता। ये सब तो वड्डी बख्शिश है। इस तो होर अगली धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे हुंदियां अज पता नहीं मेरी कौम दे किन्ने ही बंदे ने। ज्ञानी जी फिर वो नेक कलंक अवतार कदों आएगा? तो मेरी एक ही बेनती है, नहीं आएगा। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डा कोई नेक कलंक अवतार हो ही नहीं सकता। किवें? हुण तुसी एक बंद कमरा बनाओ, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, कोई शीशा नहीं होना चाहिए। उहदे विच गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करो। हुण उस कमरे विच किसे अपनी भैन नूं, बच्ची नूं, धी नूं, जिहदी जवान उम्र होवे उहनूं कहो बेटे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहब ने, पुत्र तू उत्थे 2 घंटे बैठना है। तो जदों वो बच्ची 2 घंटिया बाद बाहर आवे, कोई कलंक हैगा? धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे कोल मैं परसों यही बेनती की सी, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है। सोहने लगी दा, सोही दा अर्थ होंदा सोहने लगना। इस गुरु कोल बैठोगे तो सोहने लगोगे। वो जिहड़ा इत्थे रोहतक जेल च है ना, वो जदों पंचकूले उन्होंने सजा हो गई तो वो प्रेमी कुटे पुलिस ने, उदों बाद कईयां ने तो ना लेना ही छड्ड दिता। हजारां हजारां धियां भैणां दा उहदे ते इल्जाम है, हजारां दा। कईयां ते शर्म दे मारे ने यही नहीं दस्सिया भी साडे बच्चे भी जांदे सी उत्थे, वो तो उदां ही मुनकर हो गए भी जे कहिए भी साडे धियां पुत्र भी उत्थे जांदे सी तो फिर अगले ये ना कहण भी किते भाई तुसीं भी पता करो किते तुहाडी धी भैण दी इज्जत भी तो नहीं लुट ली इन्हें। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, इस तो वधिया शाह कोई नहीं हैगा। जिस पास बैठिया सोही है। इत्थे बैठोगे शोभनीक होवोगे, सोहणे लगोगे। ते सबना दा विसा इत्थे ते सारियां दा ही भरोसा है भाई। है कोई दुनिया दे विच? धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते सब दा भरोसा है भाई। एक आदमी उहदा बड़ा वड्डा बैंकट हॉल इधर बाहरी दिल्ली वाले पासे, मेरा ख्याल शायद 20-25 एकड़ च ही होवे तो होवे। तो मैं किसी ब्याह शादी विच गया तो मैनू आके मिलिया, ये मेरा है जी। तो मैं उन्होंने खैर मैं क्या तुसी बंगला साहब आने होने हो, तुसी यकीन करना। उन्हें उल्टा मैनू शर्मसार किया, कहता ज्ञानी जी ये किहड़ी गल कीती जे? कहता होवे सिख ते बंगला साहब ना जावे भला, जाना कित्थे है? होर कोई थां हैगी है?
कोई है थां जिथे गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर आप जा सकते हैं किते? सब का विश्वास इत्थे ही है, इथों सब दियां झोलियां भरदियां ने। एक फैसला कर लो अज, किते नहीं जाना। बड़ी ऐड आउंदी है, वो जिहड़ा लोकां ने वो मैनेजमेंट कोर्स किया ना, मैनूं लगदा भी वो सारा देह धारियां ते ही चला गया। बकायदा इसनूं मैनेज किया जाता है, कमर्शियल तरीके नाल ऐड दित्तियां जांदियां ने, बंदे हायर किए जाते हैं। दिल्ली विच भी हैगे ने, पंजाब दे विच भी हैगे ने। मैं सुन के हैरान हो गया कि बंदे 200 रुपए ते हायर किए ने ते ट्रालियां विच बिठा के बंदे लिआंदे जा रहे ने। उन्हां दा ड्रैस कोड है चिट्टी पग, चिट्टा कुर्ता पजामा। भाव दुनिया नूं ये पता लगे भी ये ते बाबा जी दे वलंटीयर ने, हैगे पेड़ ने। जिवें वो लिआउंदे नहीं राजनीतिक आदमी रैली च, वो सारे पेड़ ही हुंदे ने, 200 रुपये ते आए हुंदे ने। मैं पहली बार जो सुनिया मैं खुद हैरान होया भी पॉलीटिशियनां नूं तां सुनिया सी कि वो रैलियां च बंदे मुल खरीद के लिआउंदे, बाबियां ने नवां काम शुरू कर लिया। आए दिहाड़ी ते ने बंदे, काम ते आए ने, ते साबित ये किया जा रहा भी वेखो शरधा किन्नी है पंजाब च। चिट्टियां पग्गां बन के, चिट्टे कुर्ते पजामे पा के, ये वेखो जी किन्नी सेवा करते हैं। लंगर पकाई जाते हैं, भांडे धोई जाते हैं, लंगर वरताई जाते हैं। बई दिहाड़ीदार ने, होर करनगे की? चिट्टे कपड़े तो लोगों को धोखा देने लिए बनाए ने, क्योंकि बाहरों दुनिया आती है, वो इस गल तो आकर्षित होंदी है भी इत्थे तो बड़ी इन्हां दी बड़ी मानता इस बाबा जी की। तो यह भी एक तरीका है। जिहड़े मैनेजमेंट कोर्स लोगों ने कर ले ने ना, वो बहुती मैनेजमेंट हुण इत्थे लागू होंदी है। इत्थे जरूरत नहीं है, इत्थे जरूरत नहीं, इत्थे विश्वास भरोसे की लोड़ है। एक फैसला कर लो कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो बगैर किसी को मत्था नहीं टेकना। ऐड बहुत आएगी, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, लख होणगे बाबा जी, की फर्क पैंदा? कोई फर्क नहीं पैंदा। पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे तुल कोई नहीं हैगा, ना हो सकता है, ना हैगा, ना असी किसी को मन सकते हैं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सन्मान जे पुछना होवे ते पुछियो गुरु अर्जन साहब नूं कि जिस दिन ये बीड़ तैयार होई सी, उस दिन ये चवर उन्होंने अपने सीस ते नहीं सी झुलाया। ये सीस चवर उन्होंने अपने सीस ते नहीं सी चलाया। वो चवर जिहड़ा गुरु अर्जन साहब दे सीस ते झुलदा सी, वो चवर अपने हाथ विच लैके, अपने कर कमलों विच लैके इस पोथी साहब ते झुलाया सी। जिथे हरमंदर साहब दे विच आप गुरु अर्जन साहब बैठते सी, उत्थे लिया के धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा जिहड़ा पीढ़ा सी, वो जिहड़ा महाराज दा स्वरूप सी, वो मंजी सी, उत्थे लिया के स्थापित कीती सी। जिस पलंग ते रात नूं सतगुरु सौंदे सन कोठा साहब दे विच, उस पलंग दे उपर इस ग्रंथ दा सुखासन कीता सी। यह है इस गुरु ग्रंथ साहब दा सन्मान। सवाल ही नहीं कि मैं की कहना गुरु ग्रंथ साहब बारे, तुसी की कहने हो, साडियां गल्लां बड़ियां छोटियां ने। अगर गुरु ग्रंथ साहब जी का अदब सीखना, पढ़ना, समझना है, तो गुरु अर्जन साहब तो समझना भी सच्चे पातशाह गुरु तुसी, ये तो केवल बाणी का ग्रंथ है, तो इस बाणी के ग्रंथ का अदब इन्ना है। इस बाणी के ग्रंथ का अदब बहुत सी।
तो जदों ये बन गया गुरु ग्रंथ तो गुरु कलगीधर पिता ने खुद मत्था टेकिया सी, आप परिक्रमा कीती सी, आप नमस्कार कीती सी, सानू आदेश कीता सी, सानू अपील नहीं सी कीती भी मन्नियो या ना मन्नियो ना, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। तुसी अपना गुरु ग्रंथ नू मनना है, मन्ने दुनिया जिन्हों मनदी मन्नी जावे, पर सिखा तू किसी होर नू गुरु नहीं मनना। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राखिया। ये शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहु आनंद। इस बाणी तो बिना, शब्द तो बिना जगत बौरा है भाई। असी मनीए ना मनीए, अज भी दुनिया दे विच अगर कोई ज्ञान का कोई मुजस्मा है तो केवल ते केवल शब्द है। जिहड़ी तुसी पढ़ाई पढ़ते हो वह भी तो शब्द ही ने ना, किताबां पढ़ते हो, कॉलेजां यूनीवर्सिटियां विच पढ़ते हो, वह भी शब्द ने। पर यह जरूर चेता रखना कि ये दोए अखर ना खिसै, जो गह रहे हो कबीर। ये जिहड़े रब दे नाम वाले दो अखर ने, ये नहीं खिसने पाए। उस प्रभु परमात्मा की वडियाई करनी ते अखरी नाम, अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरी लिखण बोलन बाण, अखरी सिर संजोग विखान। जिन ए लिखे तिस सिर नाहे। इन्हां अखरां तो बिना सिफत सलाह नहीं हो सकती। जिस दुनियादार बाबे कोल भी जाओगे फिर कहोगे बाबा जी कोई उपदेश करो, तो बाबा भी तो शब्द ही बोलेगा, और की करेगा। फिर तुसी कहोगे बाबा जी मैनू कुछ दे दिओ, तो वह भी जिहड़ा मंत्र देगा वह भी शब्द ही होएगा। तो फिर याद रखना कि किसी बाबे दे मंत्र नालों गुरु नानक का मूल मंत्र बहुत वड्डा है। बाबे दे किसी मंत्र नालों जिहड़ा वाहिगुरु गुर मंत्र है, ये सब तो वड्डा है। ये वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप हौमै खोई। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगना है। आप सारिया संगतां नूं लख 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 वधाइयां। अज साडे हाजर नाजर सतगुरु, लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु, चवर छतर तखत दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब है। अज महान पवित्र गुरपुरब विशेष करके हजूर साहब अवचल नगर की धरती ते मनाया जाता है। बड़े बड़े सिखी के जलाओ सजते ने। दो कुवारी दास नूं भी इस गुरपुरब ते हाजरी भरन का सुभाग प्राप्त होया सी। बड़ी शरधा बहुत सिदक दे नाल इस पावन गुरपुरब नूं उस धरती ते मनाया जाता है। मनाउंदा तां सारा सिख जगत ही है, पर उस धरती का खास संबंध है जिथे गुरु कलगीधर पिता ने आप ये गुरियाई बख्शी सी। एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। आओ थोड़ा जिहा समा लड़ीवार कथा नाल जुड़ीए। सतगुरु मक्के गए, उतों के काजी मुलाने पीर मिले, उन्हां नाल वार्तालाप होया। उन्होंने अपने संसे भी नवारे, पुछया भी हिंदू वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है। सतगुरा क्या नहीं पाई, अमल वड्डे होंदे ने जिहड़े
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਬੈਨ ਭਨੇ ਦਿਨ ਦਵਾਦਸ਼ ਗੈਲ, ਹੈ ਗੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਮਕਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਚੱਲੀਏ ਜਿਤ ਚਾਹੇ ਚਲੋ, ਤਿਤ ਕੋ ਸੁਣ ਬੋਲਤ ਭਾ ਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ। जय थान में गोर मोहम्मद है दिखरावो मोहे को, सो मकाना ए काबे को पाड़ तो देख लियो, अब ताहे बलोकन चाहा महाना। इस देश आए अब देख चले, तुम कामना पूर्ण हो गुण खाना। सतगुरु तुसी गुणा दी खान हो, तो जिथे हजरत मुहम्मद दी गोर है, कहता जी वो मकान भी विखा दिओ। गुर बैन भने दिन द्वादश गैल, है गोर मुहम्मद जो मकाना। सतगुरु कहन लगे मरदानिया 12 दिन लगणगे, इन्ना सफर है। अज और अज तो पहला भी ठीक है, विच विच असीं कहने आ, हुण जे सानू कोई पुछे भी अमृतसर किन्नी दूर है, हुण कहण लग गए आपां हौली हौली। पहला हुंदा सी नहीं जी 400-500 किलोमीटर है, हुण आपां कहने भी अपनी गड्डी ते 7-8 घंटे लगते हैं। हुण डिस्टेंस नूं असीं अपनी चाल दे नाल मापना शुरू कर दिता है। पहला भी सी, साडे बजुर्ग कहंदे सी कि इन्नियां मंजिलां दूर है। मंजिल तो भाव बंदे दे तुरन दी कैपेसिटी है कि वध तो वध इन्ना क बंदा तुर सकदा है, फिर उन्होंने रुकना पवेगा, फिर इन्ना क चलेगा, फिर रुकना पवेगा, फिर उन्होंने रात पै जाएगी, फिर उन्होंने उत्थे विश्राम करना पएगा। सतगुरु जी कहन लगे मरदानिया 12 दिन का सफर है इथों। हाँ जी। सुनियो हर खाए उठा मन में, गुर संग तबे इम बैन बखाना। सुन यो हर खाए उठा मन में, गुर संग तबे इव बैन बखाना। कहन लगा बाबा फिर तो बड़ा ही नेड़े है, 12 दिन ये तो बहुत नेड़े है, फिर तो बहुता दूर है ही नहीं। भाई मरदाना जी ने इस गल की खुशी हुई भी ये तो नेड़े है, नज़दीक है। हाँ जी। चल तुरन जाहे पहुँच है ताहे, समीप अह नह दूर स्थाना। कहन लगा बाबा तुहानू केड़ी देर लगनी है, तुसी झट पहुँच जाना है। तो हुण कुदरती आपां नज़दीक भी आए हैं, नेड़े आए हुए हैं आपां, तो करो किरपा गुर मुहम्मद का जिथे मकान है, कहन लगा जी ਉਹਦੀ इजारत भी करा दिओ, यात्रा करा दिओ। हाँ जी। बिगसे बदना बुझते तब ही पुन, बाक कहे तिह सो गत दाना। कमल फुल वर्गे मुखड़े वाले गुरु नानक साहब पिता महाराज, बदना बुझते तब ही पुन बाक कहे। सच्चे पातशाह ने मरदाने नूं कहा, मरदाने की गल करदा है तू, भी आए आ नेड़े ही है, चलते हैं, केड़ा दूर है। हाँ जी। द्वादश बासुर मार्ग दूर है, तू उचरै हमरे ढिग सो। सतगुरु कहन लगे मरदानिया भी तू कहना है भी 12 कोस, ये केड़ी गल है, भी ये तो कोई दूरी है ही नहीं। हाँ जी। हे प्रभ केते हजार अए छिन माहे, अवार लगी नह को। ते अगो भाई मरदाना कहता भी बाबा 1000 कोस तो आ गए, उथे तो समा लगा नहीं, तो इत्थे 12 दिनों की दूरी ते केड़ा समा लगना है, जिथे सालों साल समा लगना सी उथों तो झट आ गए आप।
ਹਾਂਜੀ। ਦੂਰ ਨ ਜਾਣਤ ਹਉ ਇਹ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਚਲੈ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਧਰਾ ਅਵਤਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਕੋ ਕਲ ਕੇ ਨਰ ਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਕੋ ਕਲ ਕੇ ਨਰ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੇਰੋ ਕਹਿਓ ਹਮ ਨਹ ਦੇਤ ਹਟਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਮਦੀਨਾ ਜਾਹੇ ਕੋ ਚਲ ਤੁਝ ਦੇਹ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੱਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮਦੀਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਦੋ ਸਿਟੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਨਾਮ ਮਦੀਨਾ ਜਾਹੇ ਕੋ ਚਲ ਤੁਝ ਦੇਹ ਦਿਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਚਲੇ ਦਿਨ ਦਵਾਦਸ਼ ਮੈਂ ਗਏ ਤਹੈ ਬੈਸ ਗੋ ਨਿਕਟ ਥਾਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਦਾਨਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਤੇ 12 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨੀਏ ਮਦੀਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਅਬ ਦੇਖ ਆਓ, ਦੇਖ ਬੇਕੀ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੋ ਰਿਦਾ ਲਲਚਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਚੱਲੇ ਦਿਨ ਦਵਾਸਤ ਮੈਂ ਗਏ ਤਹੈਂ ਬੈਸ ਗਏ ਨਿਕਟ ਥਾਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਦਾਨੀਆਂ। ਜਾਨੀਏ ਮਦੀਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਅਬ ਦੇਖ ਆਓ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਬੇਕੀ ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੋ ਰਿਦੇ ਲਲਚਾਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮਦੀਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਗੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਹੇਂਗੇ ਹਟਾਏ ਕੈਸੇ ਦੇਖੋ ਥਾਨ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੁਨ ਮੁਸਕਾਨੇ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਕੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈਣ ਇਹਾ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਸਰੂਪ ਤੇਰੋ, ਬਰਜੈ ਨਾ ਕੋ ਬਿਨ ਸ਼ੰਕ ਹਵੈ ਪਿਆਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਜਾ, ਬਿਨਾ ਸ਼ੰਕ ਪੈ ਪਿਆਨਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਰਕ ਅਜਿਹੇ ਭੱਠ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਸਾਥੀ ਤਿੰਨ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ ਜੋ ਤੈ ਐਸੋ ਦਿਡ ਜਾਨੀ ਮਨ, ਮੱਕੇ ਕੋ ਪਿਖਨ ਚਾਹੇ ਏਤੀ ਕੈਸੇ ਕੀਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ।
पूजन न आयो हो तो देखन को काज मेरो, तुरक तारीफ करें जानी मत हीनी है। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਹਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ऐसे कह गयो जाए दिखत सो भयो गुर, पूर करें उस्तत हृदय माहे चीनी है। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।